الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه فقال إني لن ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم متفق علیہ۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا اور ہم تمام لوگوں کو اس زمین پر مبعوث فرمایا اور ہمیں اور آپ کو زندگی کیسے گزارنا ہے اس طریقے کو سکھانے کے لیے اس دھرتی پر اس زمین پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہوں ان تمام نبیوں پر اور خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، اس سے قبل خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر حقوق کیا ہیں اس ٹاپک پر اور اس موضوع پر بحث کیا تھا۔ کچھ پوائنٹ باقی رہ گئے تھے، میں چاہتا ہوں کہ آج اسی چیز کو پورا کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم تقبل یا رب العالمین۔ اس سے پہلے جو خطبہ جمعہ میں جو میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق بیان کیے تھے ان میں سے سب سے پہلا حق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانا جائے۔ دوسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کی جائے، اور تیسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا جائے۔ ان تین
पॉइंट्स पर और इसकी तरफ इशारा मैंने किया था। आज के इस खुतबे जुमा में मैं यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। उम्मत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चौथा हक है वो ये है कि हम तमाम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर अमल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी में आइडियल और नमूना माने, चाहे वो अफ़आल के मैदान में हो या इसी तरीके से चाहे आपके अक़वाल हो। गोया की जिंदगी के हर शोबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21 के अंदर इरशाद फरमाया, जो मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद जो तिलावत की है। आइए सबसे पहले इसका तर्जुमा सुन लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, कि लोगों तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आइडियल है। तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आइडियल है और नमूना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, उस शख्स के लिए जो अल्लाह पर और कल कयामत के दिन पर उसे यकीन है। व ज़करल्लाह कसीरा, और उस आदमी के लिए भी नमूना है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कसरत से जिक्र करने वाला हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को कसरत से याद करने वाला हो। मेरे प्यारे साथियों, जब इस आयत करीमा को हम अपने सामने रखते हैं तो हमें मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी में वही आइडियल मानेगा, आपको वही उसवा तसव्वुर करेगा जिसके अंदर दो सिफात पाए जाएंगे, जिसके अंदर दो चीजें पाई जाएंगी, जिसके अंदर दो आदतें पाई जाएंगी। वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी में आइडियल और नमूना मानेगा। वो दोनों खसलतें कौन सी हैं, वो दोनों आदतें कौन सी हैं? आप इसी आयत करीमा के अंदर उन दोनों चीजों को बयान कर दिया गया। एक ये कि जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कल कयामत के दिन मिलने की उसे उम्मीद है, वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना मानेगा और आपके उसवा पर अमल करेगा। और दूसरी चीज जो बताई गई, व ज़करल्लाह कसीरा, कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कसरत से जिक्र करेगा। ये दोनों चीजें अगर हमारे और आपके अंदर अगर पाई जा रही हैं, तब तो हम और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना उसवा और अपना आइडियल और अपना नमूना मानेंगे। लेकिन अफसोस है, यही दोनों चीजें आज मुसलमानों से निकल चुकी हैं। आज मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल मानने के बजाय गैरों के नक्शे कदम पर चल रहा है। जबकि सहाबे किराम का अमल यह था कि वो हर मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल मानते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना तसव्वुर करते थे। जबकि हम और आप इससे बहुत दूर जा चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, काम के मुसलमान नहीं। आइए मैंने आपके सामने जो खुतबे मसनूना के बाद जो हदीस पढ़ी है, आइए उसका तर्जुमा देखते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस है, बुखारी मुस्लिम की रवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, इत्तखदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमन मिन ज़हबिन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सोने की अंगूठी पहनी। फत्तखदन्नासु खवातीम मिन ज़हबिन, जब सहाबे किराम ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी पहनी है, तमाम सहाबे किराम ने सोने की अंगूठियां पहन ली। मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके से नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आपकी किस तरीके से इत्तिबा कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सोने की अंगूठी पहनी, तमाम सहाबे किराम ने सोने की अंगूठियां पहन ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह मंजर देखा तो कहा, लोगों, मैंने जब अंगूठी पहना तो तुम लोगों ने भी अंगूठियां पहन ली, इसलिए अब मैं इसको निकाल करके फेंक देता हूं।
और उसके बाद में फरमाया इन्नी लन अल्बसहु अबदा, और आज के बाद मैं इसे कभी भी नहीं पहनूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने देखा कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगूठी को निकाल करके फेंका, तमाम सहाबे किराम ने अपनी अपनी अंगूठियां निकाल करके फेंक दी। मेरे प्यारे साथियों, जरा अंदाजा लगाइए, क्या हम और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? इसका अंदाजा हमें और आपको खुद करना पड़ेगा। हमारे और आपके लिए जरूरी है कि हम जिंदगी के हर शोबे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलें, चाहे वो अकायद का मैदान हो, चाहे वो इबादत का मैदान हो, चाहे वो मामलात का मैदान हो, चाहे वो अखलाक व किरदार का मैदान हो। गोया कि जिंदगी के हर शोबे में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज के मुसलमानों के जिंदगी पर जब हम, मुसलमानों के रोजमर्रा हालात पर जब हम जरा नजर दौड़ाते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजमर्रा हालात पर जब हम नजर दौड़ाते हैं, तो हमें और आपको, हमें जमीन और आसमान का फर्क नजर आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइए इबादत के मैदान में, अकायद के मैदान में चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारने वाले, अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन को मुश्किल कुशा और हाजत रवा तसव्वुर करने वाले, जबकि आज का मुसलमान गैरों के सामने भी जाता है, मज़ारों पे जाकर के अपने माथों को टेकता है। मेरे प्यारे साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र को सजदा गाह बनाने से मना करने वाले और ऐसा करने वालों पर अल्लाह की लानत भेजने वाले, जबकि आज का मुसलमान अपने पीरों की, अपने वलियों और अपने बुजुर्गों की कब्रों को सजदागाह बनाता है और उस पर जाकर के माथे पे टेकता है और उसके सामने अपने अपनी मुरादें लेकर के जाता है। जरा हम तसव्वुर करें, क्या हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? आओ चलो चलते हैं, इबादत के मैदान में चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पांचों वक्त की नमाज की सख्ती से पाबंदी करने वाले, जबकि आज का मुसलमान इन चीजों से महरूम हो चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पांचों वक्त की सख्ती से पाबंदी करने वाले और अपने सहाबे कराम को इसकी तरफ रागिब करने वाले, अपने सहाबे कराम को, यानी तमाम सहाबे कराम को इसकी तरफ उभारने वाले। मेरे प्यारे साथियों, जबकि आज हालात ये है कि आज अगर कोई इंसान नमाज, कोई मुसलमान नमाज पढ़ता भी है तो अपने मसलक के हिसाब से, अपने मर्जी और अपने मन के मुताबिक वो नमाज पढ़ता है। तो जरा तसव्वुर कीजिए कि हम और आप अगर अपने मर्जी के हिसाब से, अपने मुताबिक, अपने मसलक के एतबार से हम नमाज पढ़ेंगे, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यह है, सल्लू कमा रायतमुनी उसल्ली, क्यों तुम नमाज उसी तरीके से पढ़ो जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है। तो फिर अब जरा तसव्वुर कीजिए और सोचिए कि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा कहां तक बाकी रह गया। हमने कहां तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल और नमूना तस्वुर किया? कहां हमने माना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आइडियल और नमूना हैं? मेरे प्यारे साथियों, अब आओ चलते हैं अखलाक और किरदार के मैदान में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों से मिलजुल करके रहने वाले, जबकि आज का मुसलमान थोड़ी सी दौलत हो जाती है, वो उसके अंदर तकब्बुर आ जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को दरगुजर कर देने वाले, माफ कर देने वाले, जबकि आज मुसलमानों के अंदर ये तमाम चीजें नहीं पाई जाती हैं। गोया कि जिंदगी के हर शोबे में हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आइडियल होना चाहिए था, जो नक्शे कदम पर चलना चाहिए था, उन तमाम चीजों से हम और आप बर्खास्त हो गए, उन तमाम चीजों से हम और आप बहुत दूर जा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को इस बात की तालीम देने वाले कि किसी को धोखा ना देना, किसी से फ्रॉड ना करना और रिश्वतखोरी से बचना। और आज का मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को धोखा दे करके बड़ा ही खुश होता है और जाकर के दूसरों के सामने ये बातें करता है कि मैंने फला शख्स को टोपी पहना दिया। धोखा और फराडी दे करके
जाकर के दूसरों के सामने ये अपने आप को बताना चाहता है कि मैं बहुत ही होशियार शख्स हूं, मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूं कि मैंने फला शख्स को टोपी पहना दिया। याद रखिए, कल कयामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया के सामने उस शख्स को टोपी पहनाएगा जिसने दूसरों को टोपी पहनाया था, फिर समझ में आ जाएगा कि किसने किसको टोपी पहनाया था। तो ये हुई पहली चीज कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें और आपको अपना उसवा और नमूना मानना है। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल और नमूना तस्वुर करना है। दूसरी चीज है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना दरअसल ये अल्लाह की इताअत है और आपकी नाफरमानी करना अल्लाह की नाफरमानी है। सूरह निसा पढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। और एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया, सूरह माइदा पढ़िए, वातिउर रसूला वातिउल्लाह वातिउर रसूल वहज़रू फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, कि ऐ लोगों तुम अल्लाह की इताअत करो, वातिउर रसूल, रसूल की इताअत करो, वहज़रू फ़इन तवल्लैतुम, और तुम गुनाहों से डरते रहना, गुनाहों के काम से तुम दूर रहना, वअलमू, और जान लेना कि मेरे रसूल के पास, मेरे रसूल के जिम्मे तो सिर्फ लोगों तक पहुंचा देना है, लोगों के पास सिर्फ पहुंचाना है। अब लोग अमल करते हैं या नहीं करते ये इनके जिम्मे है। आपका जिम्मे था कि हम लोगों के पास जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन दिया गया था वो दीन हमें और आपको देकर चले गए। अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम और आप उस दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें, उस दीन के मुताबिक अपने आप को ढालें। और आइए इस आयत करीमा से अंदाजा लगाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया सूरह अनफाल के अंदर, अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, कि ऐ लोगों जो ईमान लेकर के आए हो, जब अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें दावत दें, तुम्हें बुलाएं उस चीज की तरफ जिसमें तुम्हारे लिए जिंदगी बख्शो, तुम्हारे लिए नफा बख्शो, तो उनकी दावत पर तुम लब्बैक कहो, उनकी तरफ भागो। ये आयत करीमा नाजिल होने से पहले हजरत अबू सईद अल मुअल्ली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहा था, उसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया। मैंने सोचा कि अब मैं नमाज पढ़ूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाऊं। बहरहाल वो कहते हैं कि मैंने नमाज मुकम्मल कर लिया। मुकम्मल कर लेने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब मैं पहुंचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा मनाअका अन तातिया, कि अबू सईद तुमको मेरे पास आने से किस चीज ने मना कर दिया था। हजरत अबू सईद कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं नमाज पढ़ रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अबू सईद अलम यकुलिल्लाह, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि अल्लाह तबारक ताला ने ये नहीं कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, कि जब अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें दावत दें, जब तुम्हें पुकारें तो उनकी दावत पर तुम लब्बैक कहो, यानी फौरन तुम हाजिर हो जाओ। गोया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म एक शरई हुज्जत और दलील है। और उसके बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, कि जो रसूल तुम्हें दे उसको ले लो और जिस चीज से तुम्हें मना कर दे उससे तुम बाज आ जाओ, उससे रुक जाओ। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ औरतों पर लानत भेजा। कहते हैं, लानल्लाहुल वाशिमात वल मुतशिमात वल मुतनम्मिसात वल मुतफल्लिजात लिल हुस्निल मुगय्यिरात खलक़ल्लाह। कहते हैं हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि अल्लाह की लानत हो उन औरतों पर जो गोदना गोदती हैं और गोदना गुदवाती हैं, यानी अपने जिस्मों पर टैटू बनवाती हैं, बनाने वाले पर भी और बनवाने वाले पर भी, दोनों पर अल्लाह की लानत है। और इसी तरीके से फरमाया कि उन औरतों पर भी अल्लाह की लानत है जो औरतें अपने चेहरे के बाल को खुड़वाती हैं, अपने भौं के बाल को खुड़वाती हैं, और इसी तरीके से जो अपने दांतों के दरमियान में शिगाफ करवाती हैं खूबसूरती के लिए, उसके दरमियान में गैप करवाती हैं, ऐसी ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत हो। जब
हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतना बयान किया कि बनु असद की एक औरत जिसे उम्मे याकूब कहा जाता था, उनके पास जब यह बात पहुंची वो फौरन भाग करके हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आई और कहा कि मुझे पता चला है, मुझे यह बात पहुंची है कि तुम फला फला औरतों पर लानत भेज रहे हो, तो क्यों भेज रहे हो? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं क्यों ना भेजूं, मैं ऐसे ऐसे औरतों पर लानत क्यों ना भेजूं जिस पर रसूलुल्लाह ने लानत भेजा है, जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब में लानत भेजी गई है। हजरत उम्मे याकूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि अच्छा, क्या कुरान के अंदर भी इसका तज़किरा है? कहा हाँ। कहा क्या? मैंने पूरा कुरान पर डाला लेकिन इसका तज़किरा तो कहीं नहीं मिला मुझे। सोचिए, एक मसले को हल करने के लिए, एक मसले को सोल्व करने के लिए पूरा कुरान का मुताला कर डाला और उसके बावजूद भी उस पर मुतमईन नहीं हुई। फिर आकर के अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास वो सवाल कर रही है कि आखिर में जो तुमने फतवा दिया है ये कहां कुरान के अंदर है, कहां ये हदीस के अंदर है? सोचिए, आज एक मौलवी लोगों के सामने तकरीरें करके चला जाता है जिसका ना कोई हवाला पता है और ना कुछ पता है, लेकिन किसी के अंदर ये जुरात और ये हिम्मत नहीं होती कि मौलाना साहब बताइए, ये जो तुमने ये हदीस पेश की है ये कहां से पेश किया है, क्या ये कुरान के अंदर है? एक औरत होकर के वो अब्दुल्ला बिन मसूद जैसे सहाबी के पास आकर के झगड़ रही है कि बताइए ये जो तुमने फतवा दिया है कहां से फतवा दिया है? अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कहा मैंने पूरा कुरान पढ़ डाला लेकिन ये चीज तो मुझे कहीं नहीं मिली। कहा अच्छा, तुमने कुरान पढ़ डाला? कहा हाँ। कहा यह आयत करीमा तुम्हें नहीं नजर दिखाई नहीं, ये आयत करीमा तुम्हें नहीं मिली? वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि जो रसूल तुम्हें दे उसको ले लो और जिस चीज से रसूल तुम्हें मना कर दे उससे तुम रुक जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीजों से मना किया है, इसलिए मैंने ऐसी ऐसी औरतों पर लानत भेजी है। उसके बाद में फिर कहा हजरत उम्मे याकूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कि जिस चीज से आप मना कर रहे हैं आपकी औरत तो यह काम करती है। कहा अच्छा। कहा जाकर के मेरे घर में जाकर देखो। हजरत उम्मे याकूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में जाती हैं और जिस चीज की तलाश में वो जाते हैं उनको वो नजर नहीं आता है। फिर जब घर से वापस आती हैं, घर से जब बाहर निकलती हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं कि क्या हुआ, वो चीज़ आपको मिल गई जिस चीज़ की तलाश में आप गई थी? कहा वो चीज़ मुझे नहीं मिली। और कहा कि अल्लाह की कसम, अगर वो चीज़ आपको मिल जाती तो मैं उस औरत के करीब तक नहीं जाता। सोचिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो शख्स जो नाफरमानी करता है, सहाबे किराम का यह हाल है कि वो अपने बीबी को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसकी बहुत सारी मिसालें हदीस के अंदर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह मौका मिला तो उसकी तरफ आपको लेकर चलूंगा। मेरे प्यारे साथियों, तीसरी चीज इख्तलाफी मसाइल। उम्मत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तीसरा हक है वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दरमियान में जो इख्तलाफी मसाइल हैं उन मसाइल के दरमियान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम फैसल मान लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाकिम मान लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, तेरे रब की कसम ये लोग मोमिन नहीं हो सकते। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक कि ये लोग अपने आप से मसाइल के दरमियान में आपको हाकिम न मान लें, जो फैसला आप कर दें उसको ये लोग खुशी खुशी मान न लें, जब तक कि ये लोग मोमिन नहीं हो सकते। हजरत उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मेरे बाप हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान में, हजरत उर्वा बयान करते हैं अपने बाप के बारे में, जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कि मेरे बाप के दरमियान में और इसी तरीके से हजरत एक सहाबी के दरमियान में झगड़ा हो गया। मकाम हर्रा में एक नाली को लेकर के झगड़ा हो गया, जिस नाली के जरिए से लोग अपने खेतों को सैराब करते थे, अपने खेतों की सिंचाई करते थे, अपने बागीचों को लोग सींचते थे। उस नाली को लेकर के झगड़ा हो गया और वो लोग मसला लेकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक में फैसला कर दिया। क्यों?
क्योंकि उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो खेत था वो पहले पड़ता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी कानून कायदे के मुताबिक फैसला कर दिया कि जिसका खेत पहले है उसी को पहले हक दिया जाए, और कहा हजरत उर्वा बिन जुबैर से कि या जुबैर सुम्मा अरसिल मा इला जारिक, कि जुबैर तुम अपने खेत को सैराब करो, उसके बाद में तुम इस पानी को अपने पड़ोसी के लिए छोड़ देना। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कहा, जो सहाबी रसूल थे, दूसरे सहाबी, उन्होंने, उनके चेहरे पर थोड़ा शिकन आ गया और वो नाराज हो गए और ये जुमला कर बैठे कि अल्लाह के रसूल, आपने तो सिर्फ ये फैसला उनके हक में सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके फूफी के लड़के हैं, इसलिए उनके हक में फैसला कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जुमला सुना, आप नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, आपके चेहरे की रंगत बदल गई और आपका चेहरा मुतगय्यर हो गया, और आपने फरमाया इस्क़िया जुबैर सुम्मा हबिसिल मा हत्ता ला यरजिया इलल जुदरे, फरमाया कि जुबैर तुम अपने खेतों को सैराब करो और पानी को तुम उस वक्त तक ना छोड़ना जब तक कि वो पानी तुम्हारे खेतों के मुंडेरों तक ना पहुंच जाए, उस वक्त तक ना छोड़ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए। हजरत उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब मुझे लगा कि आयत करीमा उसी वक्त नाजिल हुई है कि यानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे जो इख्तिलाफी मसाइल हैं उन मसाइल के दरमियान में फैसला जो कर दें उसको तुम खुशी खुशी मान लो, उसके जब फैसला कर दें तो तुम जर्रा बराबर भी ना खुशी का इजहार ना करो, उसको फौरन उस पर अमल करो। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा हक है कि जो भी हमारे दरमियान में इख्तिलाफी मसले हैं उन पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे सामने आ जाए, कुरान की आयतें हमारे सामने जब आ जाए, तो हम अपने मसलक को तरजीह ना दें और अपने इमाम के कौल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौल पर तरजीह ना दें, बल्कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को फौकियत दें। अगर ये काम हम कर रहे हैं तब तो कामिल मोमिन हैं। चौथी चीज, कुरान और सुन्नत पर अमल करना। उम्मत पर चौथा हक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक यह है कि कुरान और हदीस पर अमल किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात के वक्त जो चीज छोड़ करके गए थे वो सिर्फ दो ही है, और उन्हीं दोनों चीजों से हमें और आपको दीन के जो अहकाम हैं, जो मसाइल हैं, उन्हीं से हमें और आपको हासिल करना है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तरक्तु फीकुम शैअन लन तज़िल्लू बअदहुमा किताबल्लाहि व सुन्नती वलन यतफर्रका हत्ता यरिद अलैहिल हौज़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़ के जा रहा हूं। तरक्तु फीकुम शैअन लन तज़िल्लू बअदहुमा किताबल्लाहि व सुन्नती, उन दोनों चीजों को जब तक तुम मजबूती से पकड़े रहोगे, लन तज़िल्लू, तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। कौन सी चीज है वो? एक कुरान और दूसरा सुन्नत रसूल, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका। फरमाया जब तक इन दोनों चीजों के मुताबिक तुम अपनी जिंदगी को गुजारते रहोगे, लन तज़िल्लू, तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते, वलन यतफर्रका, और ये दोनों चीजें कभी अलग नहीं हो सकती, कभी जुदा नहीं हो सकती, हत्ता यरिद अलैहिल हौज़, यहां तक कि तुम लोग मुझसे हौज़ कौसर पर मिल जाओ। और याद रखिए, ये चीज भी याद रखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ और सिर्फ सही हदीस पर अमल किया जाएगा, सही हदीस पर। अल्लाह के रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, बयान फरमाते हैं कि रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकूनु फी आखिर ज़माने दज्जालूना कज़्ज़ाबूना, कि आखिरी जमाने में झूठे और मक्कार लोग पैदा हुए और तुम्हारे सामने यातूनकुम मिनल हदीस बिमा लम तस्मउ अंतुम व आबाउकुम, और ऐसे ऐसे हदीसें तुम्हारे सामने बयान करेंगे जिसको तुमने ना तो खुद सुना होगा और ना तुम्हारे बाप दादा ने सुना होगा। ऐसे ऐसी हदीसें तुम्हारे सामने लेकर के आएंगे। फरमाया फय्याकुम वय्याहुम, तुम उनसे अपने आप को बचाना, नहीं तो ला युज़िल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, तुम्हें गुमराह कर देंगे और तुम्हें फितने में डाल देंगे। तो हमें और आपको, हर एक आम और खास शख्स को
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज हमें दे करके गए थे, यानी कुरान और सुन्नत रसूल, जो चीज हमें हमारे और आपके दरमियान में छोड़ करके गए, उन्हीं चीजों पर हमें और आपको इक्तिफा करना है। उन्हीं दोनों चीजों से जो इस्लाम के जो मसाइल हैं, उन्हीं चीजों से मुस्तंबत करना है। हजरात गिरामी, एक बात मैं कह करके अपनी बात को खत्म कर देता हूं। आइए देखते हैं कि सहाबे किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरीके से इताअत करते हैं। सहाबे किराम के अंदर किस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी इताअत कूट कूट करके उनके दिलों के अंदर किस तरह भरा हुआ था। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, वान अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ खातमन मिन ज़हबिन फी यदि रजुलिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी। रा खातमन मिन ज़हबिन फी यदि रजुलिन फनज़अहु फतरहु। आपने उस अंगूठी को निकाला और उसको फेंक दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले गए, तमाम साहबे कराम जो वहां बैठे हुए थे, फ़क़ील लिर्रजुल मा बाद ज़हब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, आप तमाम साहबे कराम ने उस आदमी से कहा, खुज़ खातिमा का, इस अंगूठे को उठाओ, इंतफ़ि बिही, और इससे तुम फायदा हासिल करो। कम से कम तुम इसको नहीं पहन सकते तो ले जाकर के अपनी बीवी को दे देना, अपनी वाइफ को दे देना, वो इस अंगूठे से फायदा उठा लेगी। लेकिन उस सहाबी ने क्या कहा? अल्लाह की कसम, ला वल्लाहि ला अख़ुज़ुहु अबदा, अल्लाह की कसम मैं इस अंगूठी को नहीं उठा सकता। क्यों? क़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मेरे हाथ से निकाल करके फेंक दिया। अब मेरे अंदर ये ताकत नहीं है, मेरे अंदर ये जुरात नहीं है कि मैं इस अंगूठी को उठा लूं। सोचिए, उनके लिए सिर्फ हराम करार दिया, ये तो नहीं कहा कि तुम्हारी बीबी के लिए हराम है। लेकिन आपके सहाबे कराम ने किस तरीके से आपकी बातों पर अमल किया। क्या यह चीज सहाबियात के अंदर भी मौजूद थी, औरतों के अंदर भी पाया जाता था? आइए एक हदीस आपके सामने रखता हूं। हजरत उसैद बिन अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, वो अपने बाप से रवायत करते हैं और कहते हैं कि मेरे वालिद ने इस हदीस को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान फरमाते हुए सुना, और ये उस वक्त की बात है, वह हुआ खारिजुन मिनल मस्जिद फख्तलत अर्रिजाल मअन निसा फी तरीक, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से निकले, सहाबे किराम भी साथ में निकले और उधर से औरतें भी निकल पड़ी। फख्तलत अर्रिजाल मअन निसा फी तरीक, और उसी रास्ते में औरतें और मर्द एक साथ, सब एक साथ गुड़मुड़ हो गए और मिल गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों से, इस्ताखिरना, कि औरतों तुम रुक करके चलो, तुम पीछे चलो और तुम थोड़ा ठहर करके चलो। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जुमला कहा, फकानतिल मरतो तल्तसिकु बिल जिदारे, वो औरतें दीवार से इस तरीके से सट करके चलने लगी, हत्ता इन्ना सौबहा ला तअल्लक़ु बिल जिदारे, कि उनके कपड़े जब वो इस तरीके से दीवारों से सट करके चल रही थी, उनके कपड़े उन दीवारों से फंस जाया करते थे। सोचिए किस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर हमारी मां और बहनों ने अमल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना सिर्फ इतना था कि औरतों तुम पीछे चलो, और तुम्हारे लिए जायज और दुरुस्त नहीं है कि तुम बीच रास्ते पर चलो। तुम्हारे लिए जायज ये है, तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि तुम किनारे के रास्तों के अख्तियार करो। औरतों ने उस पर फौरन अमल किया। ऐसे ऐसे वाकयात हैं सामिन किराम कि लोगों ने अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया। अगर देखा कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत कर रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की मुखालिफत कर रहा है, तो अपने रिश्तेदार का भी बायकाट कर दिया। हजरत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बयान करते हैं कि एक मर्तबा हजरत अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रास्ते से गुजर रहे थे। देखा कि उनका रिश्तेदार सड़क से पत्थरों को उठा करके फेंक रहा है, कंकरियों को उठा करके फेंक रहा है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल उसके पास गए और कहा, जो ये हरकत तुम कर रहे हो, जो काम तुम कर रहे हो, इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। यह काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद था, लेकिन फिर भी वो आदमी ना माना।
और फेंक रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ला उकल्लिमुका कज़ा व कज़ा, मैं तुमसे इतने दिन तक बात ही नहीं करूंगा। दूसरी रिवायत के अंदर मौजूद है, आप हजरत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ला उकल्लिमुका अबदा, मैं तुझसे कभी भी बात ही नहीं करूंगा। पूरी जिंदगी के लिए उनको बायकाट कर दिया। सोचिए, वो बयान कर रहे हैं कि इस चीज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है और वो काम वो बार बार वही काम कर रहे हैं। कहा मैं तुमसे अब जिंदगी भर बात ही नहीं करूंगा। हजरत गिरामी, बहुत सारी बातें हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब इसी तरीके से हजरत अब्दुल्ला बिन सालिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हदीस बयान किया कि तुम अपनी औरतों को मस्जिद में जाने से मना ना करो, इजस्तादन्नकुम इलैहा, जब वो तुमसे इजाजत तलब करें मस्जिद में जाने के लिए इजाजत मांगे तो तुम उनको मस्जिद में जाने से ना रोको, उनको इजाजत दे दो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ये हदीस बयान कर चुके, आपका बेटा यानी अब्दुल्ला बिन उमर का बेटा हजरत बिलाल बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने कहा वल्लाहि लनमनअहुन्ना, अल्लाह की कसम मैं उनको जरूर रोकूंगा, अल्लाह की कसम मैं उनको जरूर रोकूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं उखबिरुका अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तक़ूल लनमनअहुन्ना, मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहा हूं और तू कह रहा मैं उन्हें जरूर रोकूंगा। और एक दूसरी बात के अंदर मौजूद है कि उन्होंने अपने दूसरे बेटे जिसका नाम वाकिद था, जब यह हदीस बयान किया उसने कहा मैं जरूर रोकूंगा। क्यों? क्योंकि जब वो मस्जिद में जाएंगे तो वो खराबी का जरिया बन जाएंगे, इसलिए मैं उन्हें जरूर मना करूंगा। उसके बाद में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे और उसके सीने पर एक जबरदस्त घूंसा लगाया और कहा मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहा हूं और तू कह रहा है कि मैंने जरूर रोकूंगा, मैं इन्हें जरूर मना करूंगा। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी तरीके से उनकी एक बीबी मस्जिद में जाकर के इशा और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ती थी। एक सहाबी आए, कहने लगे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये चीज जो तुम कर रही हो ये नापसंद है, आप बागैरत इंसान हैं। उनकी बीबी ने कहा तब फिर मुझे क्यों नहीं मना कर रहे हैं उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुझे क्यों नहीं रोक रहे हैं। उस सहाबी ने यह हदीस पेश किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारी औरतें, जब तुम्हारी बीबियां मस्जिद में जाने के लिए तुमसे इजाजत मांगे तो तुम उनको रोको नहीं, उनको मस्जिद में जाने दो। इसी हदीस की बुनियाद पर सिर्फ और सिर्फ आपको नहीं रोक रहे हैं। आज तो मुसलमानों का हाल यह है कि अगर मस्जिद में चली आए तो मस्जिद में औरतों का आना फितना, लेकिन बाजारों के अंदर टहलें और मार्केटिंग करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वो जो बाजार है, जो मार्केट है, वो शैतानों का अड्डा है। शैतानों का अड्डा बयान फरमाया कि ये शैतानों का अड्डा है। उस जगह हम इजाजत देते हैं कि जाओ, लेकिन अगर मना करते हैं तो किस चीज से? मस्जिद में आने से हम रोकते हैं। हजरत गिरामी, इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें मैं चाहता हूं सिर्फ एक चीज आपके सामने बयान कर दूं। आज लोग दावा तो करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन याद रखिए हम गाने भी सुनते हैं, म्यूजिक भी सुनते हैं, इसके बारे में कव्वालियां भी सुनते हैं और दावा यह करते हैं कि हम सच्चे आशिक रसूल हैं, सच्चे आशिक रसूल हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलैया औ हर्रमल खमरा वल मैसरा वल कूबता व कुल्लु मुस्करिन हराम। फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझ पर हराम कर दिया है, और हर्रमल खमरा, या शराब को हराम कर दिया, वल मैसरा, और जुए को हराम कर दिया, वल कूबता, और म्यूजिक को हराम कर दिया, व कुल्लु मुस्करिन हराम, और फरमाया हर नशावर चीज हराम है, हर नशावर चीज हराम है। और इसी तरीके से दूसरी हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया अल जरसु मज़ामिरुश शैतान, कि ये जो म्यूजिक है, जो घंटी है, ये शैतान के बाजे हैं, शैतान के बाजे हैं। और याद रखिए जिस महफिल के अंदर म्यूजिक की आवाज आए, गाने की आवाज आए, फरिश्ते उस मजलिस को छोड़ देते हैं, उस मजलिस से हट जाते हैं।
हज़रत अबू हुरैरा ही रावी हदीस हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला तस्हिबुल मलाइकतु रुफ़क़तुन फ़ीहा अल जरसो वला कल्बुन, कि जिस मजलिस के अंदर कुत्ते मौजूद हों और इसी तरीके से म्यूजिक की आवाज़ आती हो, वहाँ फरिश्ते नहीं ठहरते। जब फरिश्ते नहीं ठहरेंगे तो याद रखिए वहाँ शैतानों का अड्डा होगा। और आज तो बड़े धड़ल्ले के साथ में म्यूजिक बजाई जाती है और दावा यह किया जाता है कि हम सच्चे आशिक रसूल हैं। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत नहीं तो और क्या है? ये कितनी हदीसें आपके सामने बयान की जाएं, और बहुत ही सरी हदीस है कि एक जमाना ऐसा आएगा कि म्यूजिक लोगों के सरों पर बजाए जाएंगे और ऐसे लोगों को जमीन के अंदर धंसा दिया जाएगा, जलजले आम हो जाएंगे, आसमानों से पत्थरों की बारिश होगी। सोचिए कितने खतरनाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों के बारे में बयान फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जब तक तो हमें इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रख, ईमान पर, इस्लाम पर ज़िंदा रख। ऐ अल्लाह, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो, इस्लाम पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।